جاری مدد مومنوں، ہم نے بہت سے گنان سنے. مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ ان کی امامت کی 25ویں ہم نے سالگرہ بھی بنائی امامت دے، اور یہ برس سلور جبلی کا برس ہے. ہم لوگوں کو دیکھتا نہیں. حضرت صدر جی ماں باپ نے ایک گنان فرمایا جس کے امک پاس آج کے اس سمے میں ہمیں اس خوشی کے موقع پہ ہمیں سمجھنے چاہیے. گھوڑے علی چار سے شاہ چڑی میرے کو اتنے ہی پاٹھ آپ سے سنانے تھے. یہ نام لمبا ہے. اس میں صدر دن ماں باپ نے 2-3 باتیں فرمائی. ایک تو یہ خوشی کی بات ہم کو آدم واہی بتائی کہ مولا اس ہندوستان کے اندر پاؤں رکھے گا، دور گھوڑے سے سواری کرے گا اور چڑی چوک بھون میں رکھتے ہو. شیعہ مذہب کی کتابوں کے اندر مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے اس گھوڑے کو جس کو دلدل کہتے تھے، محبت سے کہو جیسے کہ کسی ماں کو اپنے بچے سے زیادہ کوئی بچہ پیارا نہیں ہوتا، اور بچے کو اپنی ماں سے زیادہ کوئی ماں پیاری نہیں ہوتی. یا آپ اس چیز کو حقیقت سمجھو، کیونکہ عاشقوں کی نظر کے اندر محبوب کی ہر ادا، محبوب کی ہر بات، محبوب کی ہر حرکت ایک انیری اور انوکھی چیز ہوتی ہے. شیعہ مذہب کے لوگ دلدل کے اوپر جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آنکھ کی پلک میں وہ زمین سے آسمان پہ جاتا تھا. بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ اس طرح سے بھاگتا تھا کہ جیسے اس کے پر تھے. دلدل کی اسواری مولا علی کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں. ہسٹورینز جو غیر قوم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس جیسا فاسٹ گھوڑا ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، اور حقیقت میں وہ آنکھ کی پلک میں کہاں جاتا تھا. یہ دلدل گھوڑا ایروپلین ہے. آج کے زمانے کے اندر زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک آج امام اپنے جیٹ پلین کے اندر گھومتے ہیں. 650 مائل کی اسپیڈ ہے اس کی. چوک بھوک میں بڑھتے ہو. یہ دلدل گھوڑا وہ گھوڑا بھی ہے جس کے 4 پاؤں ہیں، پوچھڑی ہے، جس کو عام طور پہ ہم گھوڑا کہتے ہیں.
یہ دلدل گھوڑا یہ ایروپلین بھی ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے اسپیڈ میں جاتا ہے، لیکن ایک اور دلدل گھوڑا ہے کہ جس کی اسپیڈ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور وہ ہے انسان کے وچار۔ یہ وہی گھوڑا تھا، خیال کا گھوڑا، وچار کا گھوڑا، کہ جس کی اسپیڈ کو لائٹ بھی پہنچ نہیں سکتی، کہ جس پہ بیٹھ کے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، یہ وہی گھوڑا تھا۔ آج مولانا حضرت امام ایک جگہ بیٹھا ہے، لیکن اس کی درشٹی، اس کے خیال، اس کے وچار، اس کی نورانی طاقت سارے جہان میں پسری ہوئی ہے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک دفعہ جماعت کے اندر بیٹھے اسے فرمایا، اپنی انگلی مبارک سے آنکھ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو ان آنکھوں سے ہم سارے جہان کو دیکھتے ہیں، وہ وقت آئے گا، حضرت صدر الدین فرمایا کہ جب امام اس جمپو دیپ کے اندر آئے گا، دھرے شاہ پاؤں اس کی دھرتی پہ پاؤں رکھے گا۔ آج کے صدر الدین کو 600 برس ہوئے، اس صدر الدین کے وفات کے بعد 500 برس کے بعد مولانا حسن علی شاہ ماں باپ صلی اللہ علیہ ہندوستان کی دھرتی پہ پاؤں رکھا، لیکن امام حسن علی شاہ ماں باپ سے بھی پہلے ان کے دادا نے سید ابو الحسن شاہ، مولانا امام سید ابو الحسن شاہ جو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے باپ کے بھی باپ سے پتا تھے، انہوں نے لاہور کی دھرتی پہ پاؤں رکھا۔ سچ پوچھو تو پھر صدر الدین کے بعد سب سے پہلے کسی امام نے جب وجود کی دھرتی پہ پاؤں رکھا تو وہ امام سید ابو الحسن شاہ تھے۔ نادر شاہ بادشاہ کے ساتھ ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ نادر شاہ مولا کا مرید تھا، وہ امام کو ساتھ لے کے آیا تھا، ڈرتا تھا کہ ہندوستان جاتا ہوں شاید میں سفلتا پاؤں کہ نہ پاؤں، تو امام کو مجبور کر کے، عاجزی کر کے، اس وقت امام سید ابو الحسن شاہ کی آنکھیں دکھتی تھی، یہ لے کے آیا، اللہ کو جیتا، پھر مولا تو واپس چلے گئے، مگر حسن علی شاہ ماں باپ ایران دیش چھوڑ کر ہندوستان میں رہنے کے لیے آئے۔ ہندوستان میں 1842 میں رہے، رجواڑی لشکر 2000 آدمی کا ساتھ لے کے آئے تھے۔ حسن علی شاہ ماں باپ بمبئی میں وفات پائی اور حسن آباد کی جگہ پہ مولانا حسن علی شاہ نے اپنے شریف مبارک کو دفن کروایا۔ حسن علی شاہ ماں باپ بمبئی میں دفن ہے، اس پر سے نام پڑا حسن آباد۔ اپنی باڈی مبارک کی دھرتی کے اوپر جن کے لیے پیروں نے بہت بڑی بڑی عاجزیاں اور عرضیں کی تھی، اپنا جسم مبارک وہاں چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کو بعض دفعہ کہا ہے، نہیں آپ کو یاد تو آج کہتا ہوں، نبیوں اور اماموں کے بدن کو زمین کبھی نہیں کھاتی۔ 2-4 ہزار برس کے بعد بھی کبھی ان کی قبر کو، مقبرے کو کبھی کھود کے نکالا جائے تو ان کی باڈی ایسی ہی پڑی ہوتی ہے، نبیوں اماموں کے بدن کو زمین نہیں کھاتی۔ ارے مومن کے بدن کو بھی بہت برسوں تک نہیں کھاتی، نبی امام کی بات تو بہت بڑی ہے۔ 1949 کے اندر 39 کی نومبر اور 48 کے نومبر، دسمبر، جنوری اور فروری، یہ 4 مہینے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان میں بنا تھا۔ میں خود اس وقت پاکستان میں تھا اور یہ جو بناؤ بنا ہے میں دیکھ کے آیا ہوں، اور اس وقت میں دیکھنے گیا تھا۔ کراچی سے 72 یا 75 مائل کے اوپر جھرک نام کی جگہ ہے، چھٹا کے قریب، حیدرآباد جاتے وقت رستے میں آتا ہے۔ یہاں جو جگہ تھی مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ 70 اسماعیلی شہید ہوئے تھے۔ سندھ کے اس وقت جو راجہ میر تھے ان کے ساتھ حسن علی شاہ ماں باپ نے لڑائی کی تھی، اور وہاں 70 اسماعیلی شہید ہوئے۔ مولا کی طرف سے، مولا کے پکش میں انہوں نے لڑائی کی اور اپنی شہادت پائی۔
उन शहीदों का एक बेटा इधर भी रह चुका है, वारिस शमसुद्दीन गुलाम अली हसन जेठा। ये उस जेठा का बच्चा है कि जिस जेठा ने हसन अली शाह माँ बाप के नाम पर अपनी शहादत पाई। यह शमसुद्दीन गुलाम अली हसन जेठा, वो जेठा नाम था जिसने वहां इमाम के हुजूर में शहादत पाई। दारुसलाम में वो एक कुतुब है। तो 1948 में नहर खोदते इस्माइली इंजीनियर था कैप्टन शेर अली, जो इसको सुपरवाइज कर रहा था। नहर खोदते इनकी सिंतर बॉडियां निकल आई, बाजू बाजू में सोए हुए थे। एक ही कब्र उनके लिए खड़ा खोद के बनाई गई। उन्हीं यूनिफॉर्म के अंदर, उन्हीं बूटों के अंदर, उन्हीं हथियारों के अंदर इनको हथियारों के साथ दफन किया गया। लाइन पर ये सिंतर बॉडियां पड़ी थी। ये वाकया बना हुआ है लगभग 1844 का, और यहाँ 1948 100 बरस से ऊपर हो गए। 100 बरस तक जमीन के अंदर गुस्ल दिए बगैर, वहां तो गुस्ल की बात नहीं थी, लड़ाई के मैदान के अंदर इन शहीदों को दफन किया गया। इस तरह लगता था कि जैसे अभी सो के उठेंगे, चमड़े के बूट खाए गए, लोहे की तलवारों को कीट लग गया, उठाने जाते थे तो गिर जाती थी, कीट लगने से, रक्त लगने के कारण से टूट गई। उनके कपड़े बिल्कुल गल गए, मगर बॉडी ऐसी ही नहीं। न बॉडी को कीड़े ने खाया, न उनको जीवांत ने खाया, न उनको मिट्टी ने खाया। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, डिप्लोमेट कोर्स के लोग, प्रोफेसर वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह, हजारों आदमी उनको देखने के लिए गए, और पाकिस्तान का कोई पेपर ऐसा नहीं था जिसने ये रिपोर्ट नहीं की। उनको उधर ही दफन किया गया। नहर का प्लान बदला दिया गया, मगर उनको डिस्टर्ब न किया। वापस उनके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के वहां उनको एक छोटा सा मकबरा बना दिया। 100 बरस तक भी मोमिनों शहीदों की बॉडी मिट्टी न खा सकी। तो हसन अली शाह माँ बाप ने अपने बदन मुबारक को हिंदुस्तान में रखा। उसका कोई भेद है? अली शाह माँ बाप ने फरमाया मेरी बॉडी को करबला ले जाओ। सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपनी बॉडी मुबारक को आसमान में रखा। ये जो इमाम और नबी अपने बदन को रखने के लिए हुक्म फरमाते हैं, उनमें बड़े बड़े भेद हैं, इनमें राज है, ये मिस्ट्री है, सीक्रेट है। इनकी वजह से, जैसे मैंने आपको एक अपनी बात में अर्ज की थी कि गुरु हसन कबीर माँ बाप ने अपने आप को बहावलपुर की स्टेट में उच्च नाम की जगह है, आपने फरमाया मुझे उच्च में दफन करना। गुरु की सदर वहां से लगभग 22 माइल दूर है। फिर हसन कबीर ने जब अपनी बॉडी को गुजर गए मुल्तान में, और कुछ मुल्तान से लगभग 96 माइल 100 माइल दूर है, वहां फरमान किया मुझे वहां रखना। ये वो जगह थी, हर साल दुकाल पड़ता था, हर साल अनाज बिगड़ जाता था, हर साल भूख मरा होता था, हर साल बीमारी और रोग चारा और तूफान आते थे। गुरु हसन कबीर जी ने फरमाया मुझे वहां दफन करो। जब से फिर हसन कबीर जी वहां दफन हुए हैं, 500 माइल के रेडियस के अंदर न कभी दुकाल पड़ा है, न कभी कोई बीमारी पड़ी है। उन लोगों को जाके पूछो, लीला जहर है, नहीं तो आजू बाजू में सब रेती करो। तो गुरु हसन कबीर की इस मालिक ने, इमाम पीरों का भी मालिक है, अपने आप को हिंदुस्तान में रखा, और हिंदुस्तान में एक इमाम का जन्म हुआ। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का जन्म हिंदुस्तान में जमपुती में हुआ, जो आज पाकिस्तान हो गया। तो फिर मैं ये जो इशारा किया, फरमाया तोरण बंधाते, जब शादी वगैरह होती है ना तो तोरण बांधते हैं, खुशी का समय होता है, कोई राजा रजवाड़ा का फकत नशीनी का दिन होता है, या शादी ब्याह होती है, ये यज्ञ होता है, तो वहां तोरण बांधते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं, फूल लगाते हैं, ये लोटरी लगाते हैं, खुशियों की निशानी होती है, ढोलक बजते हैं। ये तोरण कौन सा? वो वक्त आएगा, उसकी तैयारियां मौलाना हसन अली शाह महमूद से चालू हो चुकी हैं। इमामों की बातें बरस 2 बरस की नहीं होती। जब शमस पीर गए मौलाना
काफी शाह के बुजुर्ग ने अरब की बोला हिंदुस्तान आप फरमाए मैं आऊंगा। जितने भी पीर हो गए उसके बाद सब ने जाके फिर नसीरुद्दीन ने, फिर साहबुद्दीन ने, फिर सदरुद्दीन ने, फिर अब्दुल कबीरुद्दीन ने, फिर ताजुद्दीन ने और दूसरे पीरों ने भी जाके मौला के पास अर्ज की तो हिंदुस्तान आप कहा मैं आऊंगा। आया हसन अली शाह महबूब के बारे में 600-700 बरस तक उसके प्रोमिस रहे, वो बेहतर जानता है। तोरण बनाया जाएगा और फिर उस चीज के लिए फरमाते हैं वहां अनंत करोड़ जीवों का निस्तार करेगा। अनंत करोड़ जीवों को वो प्रॉमिस जो कर चुका है वो पूरा करेगा। और मौला के सिर के ऊपर छतर लगाया जाएगा। राजा और रजवाड़ों को उनकी राजनीति और उन लोगों की जो डिप्लोमेसी और हुकूमत होती है उसके निशान के तौर पे सिर पे ताज बांधते हैं या सोने का, या पगड़ी बांध के सोने की कलगी लगाते हैं। सिर के ऊपर एक छतर होता है, छतर यानी बहुत बड़ा अम्ब्रेला। ये छतर क्यों होता है राजा रजवाड़ों के ऊपर? फारसी ज़बान के अंदर, अरबी के अंदर भी बादशाह को ज़िल्ल सुबहानी कहा गया, खुदा का साया। यानी बादशाह के ऊपर अल्लाह का साया होता है, ये साया छतर है। अब तो वो जमाना रहा नहीं, अब तो प्रेसिडेंट हो गए और बादशाह घटते गए और भी घट जाएंगे। जो थोड़े बहुत बादशाह रह गए ना, आप देखना 10, 20, 25, 50 बरस के अंदर एक बादशाह के सिवा बाकी सब बादशाह मिट जाएंगे। मैं नहीं कहता वो कौन सा बादशाह होगा, लेकिन बाकी भी बादशाह खत्म हो जाएंगे। तो उनके सिर के ऊपर जो छतर होता है, ये छतर खुदा का साया है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि अल्लाह जिसको चाहता है उसको हुकूमत देता है। तो ये सच बात है कि बादशाही के ऊपर खुदा की बादशाही होती है, यानी बादशाहों के ऊपर जो छतर है वो खुदा का साया है। इमाम के सिर के ऊपर भी, दुनियावी बदन की बात करता हूँ, शरीर के ऊपर इलाही नूर है। जो इमाम का नूर है वही छतर है। फिर उनको चमर लगाते हैं। चमर जो होता है एक किस्म की चौड़ी की तरह रहता है, हैंडल होता है और घोड़े के बाल या और कोई ऐसा जानवर के जिसके लंबे बाल होते हैं, घोड़े की पूंछड़ी की खसूसन तौर पे सफेद घोड़े के सफेद बाल जो उसकी पूंछड़ी में से निकलते हैं, उसकी एक चौड़ी बनाते हैं। इसको चमर कहते हैं। एक आदमी पीछे खड़ा रहता है कि जो बादशाह के पीछे वो इस तरह से हिलाता रहता है हर वक्त। आपने मरहूम के नियाका को कभी देखा, उसके हाथ के अंदर वो सिलाई रहती थी, इसको चमर कहते हैं। मगर वो नौकरों के पास होता है, तो नौकर पीछे खड़ा हुआ तो हिलाता रहता है ताकि मक्खियां, मच्छर, जानवर वगैरह इसके पास, इसके बदन के ऊपर ना बैठे हैं। तो ये निशानियां बादशाही की हैं। सिर से चमर, छतर और चमर लगाया जाता है, हिलाया जाता है। ये बादशाह की निशानियों के तौर पे है। यानी इमाम को दुनिया के अंदर ज़ाहिरी राज भी एक दिन करना पड़ेगा। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर वो ऊपर आता जाएगा। दुनिया की नजरों में हसन अली शाह महबूब ईरान छोड़ के इधर आए और इधर आके ब्रिटिश के साथ दोस्ती की। ब्रिटिश के साथ दोस्ती करने से थोड़े प्रख्यात हुए। प्रख्यात होने में ये हुआ कि भला ये कौन है, ये ईरानी प्रिंस कौन है, कि ये अली नबी का वारिसदार है, रसूलुल्लाह की आल है। शियों के अंदर इमामत का जो उसूल है उस हिसाब से इस्माइलियों का 46वां इमाम है। लोगों को जो नहीं जानते थे उनको पता लगा कि दुनिया में इमाम जैसी कोई ऐसी व्यक्ति है। हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त ब्रिटिश का राज था, 366 राजे रजवाड़े थे हिंदुस्तान के अंदर। उन लोगों को कभी पता नहीं था। हसन अली शाह महबूब के आने से हिंदुस्तान के लोगों को इमामत का पता लगा, अली नबी का पता लगा। नबी की वंश में से डायरेक्टली उतरते चले आते 46वां इमाम है ये पता लगा। पेपरों के अंदर आया, लोगों को पता लगा। अली शाह महबूब की इमामत 4 वर्ष रही।
اس میں کوئی خاص ایسے خاص بناؤ بنے نہیں، لیکن امام سلطان محمد شاہ نے چھوٹی عمر سے کھیاتی پانی شروع کی. کھیاتی کہتے ہیں پاپولیرٹی. امام سلطان محمد شاہ کو یہ سارا پلان بنانا تھا. 16 برس کی عمر کے اندر یورپ گئے، واپس آئے، 1-2 برس رہ کے ادھر شادی ہوئی شہزادی بیگم کے ساتھ. مولانا سلطان محمد شاہ کی چاچے کی بیٹی تھی. شادی کر کے اس کے بعد پھر امام سلطان محمد شاہ یورپ جا کے رہائش شروع کر دی. 10 برس ماں کو ملنے کے لیے 2-3 مہینے کے لیے آتے تھے اور پھر تو ادھر ہی رہنا شروع کر دیا یورپ میں جا کے. اس زمانے کے اندر آپ خیال کرو، کبھی ہسٹری پڑھی ہوگی تو یورپ کے 8 ملکوں نے، یورپ کے جو پاورفل 8 دیش تھے، انہوں نے ساری دنیا کے اوپر تھوڑا تھوڑا قبضہ کر لیا. برٹش نے، فرانس نے، بیلجیم نے، ہالینڈ نے، جرمنی نے، اٹلی نے، اسپین نے، پورچوگل نے، انہوں نے سب نے اپنے ہاتھ مارے. کسی نے ہندوستان لے لیا، کسی نے افریقہ لے لیا، کسی نے ڈچ ایسٹ انڈیز، ڈچ لوگوں نے ہالینڈ میں لے لی جس کو آج انڈونیشیا کہتے ہیں. فرانس جو تھا وہ ویتنام وغیرہ کے اندر چلا گیا. اس طرح دنیا کے اندر خصوصاً ایشیا، امریکہ کا ساؤتھ پارٹ یعنی ساؤتھ امریکہ اور افریقہ، یورپ کے ان 8 دیشوں میں بانٹ لی ساری دنیا، کولونائز کر دیا. یعنی وہ زمانے کے اندر جب امام سلطان محمد شاہ جب گئے یورپ گئے تو اس وقت ساری دنیا کی جو طاقتیں تھیں وہ یورپ میں اکٹھی تھی. اس کے لیے مولا یورپ میں جا کے بیٹھ گیا. یورپ کے اندر اس کو اپنی نامنا کرنی ہے، مشہور ہونا ہے، تو کوئی رستہ ڈھونڈنا چاہیے. گھوڑے پالنے شروع کیے، ریس کورس میں جانا شروع کر دیا. یورپین لوگوں کو گھوڑوں کا ریس کا شوق وغیرہ، بس ان کے ساتھ ہل مل کے مولانا سلطان محمد شاہ دنیا میں ایسے پاپولر ہو گئے کہ اس پاپولرٹی کو ٹاپ کے اوپر پہنچانے کے لیے انہوں نے پھر اپنے مریدوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی. جبلی وکٹوریا کوئین کی 1901 میں ڈائمنڈ جبلی جب ہوئی اور اسی جبلی کے بعد کوئین وکٹوریا گزر گئی. اس جبلی کے حساب سے اسماعیلیوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا. وہ زمانے کے اندر ساری دنیا کے اسماعیلیوں کا سینٹر بامبے تھا، درخانہ بامبے. آج بھی سب پوچھو تو دنیا بھر کا درخانہ بامبئی ہے. ابھی تک امام نے اپنے درخانے کو چینج نہیں کیا، جو کہ درخانہ اس کو کہتے ہیں جہاں امام رہتا ہوئے. درخانہ حقیقت میں ایگلیمو پیرس سے 30 مائل اوپر جو جگہ ہے چینچیلی، وہ درخانہ ہے. لیکن آفیشل درخانہ ساری دنیا کا آج بھی کھڑک جمع خانہ بامبے کا ہے، جو حضرت علی شاہ محمد نے درخانہ بنایا. علی شاہ نے بحال رکھا اور سلطان محمد شاہ نے بھی بحال رکھا. حضرت امام نے کوئی فرمان نہیں کیا کہ میں درخانہ چینج کرتا ہوں. درخانہ بامبے میں تھا. بامبے کی جماعت میں مولانا سلطان محمد شاہ کی سلور جبلی کا جب موقع آیا 1910 میں سلور جبلی ہونی چاہیے تھی. 1885 میں سلطان محمد شاہ تخت نشین ہوئے. 1910 میں سلور جبلی ہونی چاہیے تھی مگر سلور جبلی نہیں منائی گئی. اس کے 2 ریزن تھے. ایک ریزن تو یہ تھا کہ 1908 کے اندر حاجی بی بی کا کیس ختم ہوا اور جماعت کے اندر ابھی تک اس چیز کا اثر اور پروموشن تھی. دوسری بات یہ تھی کہ 1910 کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرزند تھا، پرنس علی خان سے بڑا پرنس مہدی اس کا نام تھا، وہ گزر گئے. اس وجہ سے پرنس پہلا ہی لڑکا امام سلطان محمد شاہ کا جب گزر گیا تو پھر سلور جبلی کا پروگرام نہ ہو سکا. مگر 1935 میں جب گولڈن جبلی کی بات بنی تو اس وقت امام نے خوشی کے ساتھ قبول کیا اور 36 کے اندر جنوری کی 19 تاریخ کو امام سلطان محمد شاہ کی سونے کے اندر طلع بیدی ہوئی. امام کو ہسٹری بنانی تھی. اس طرح سے حسن علی شاہ مباب سے لے کے
इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इमामों ने अपने आप को किस तरह दुनिया के सामने मशहूर किया और ओपन किया, मैं आपको बहुत ब्रीफली कह रहा हूँ, लेकिन कभी आप हिस्ट्री पढ़ो तो आपको मेरी इन चीजों का और भी ज्यादा खुलासा उनके अंदर मिलेगा। सारी दुनिया मुंह में उंगली डालने लगी, सोने में तो लगी, सोने में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को सोने में तोला गया। एक वक्त नहीं, 2 दफा हिंदुस्तान में भी तोला गया, अफ्रीका में भी तोला गया। जो कि हिंदुस्तान और अफ्रीका की जमात जुड़ी नहीं, ये जम्मू द्वीप की जमात है। दिनदारों, हमारे लगभग 23-24 मिलियन इस्माइली है, 2.25 करोड़ से अधिक करोड़ इस्माइली दुनिया के अंदर है। ये करोड़ों हमारे भाई बहन रशिया में, चाइना में, सेंट्रल एशिया के अंदर, ईरान के अंदर, सऊदिया के अंदर इधर रहते हैं। लेकिन मुट्ठी भर 5-6 लाख जम्मू द्वीप के हिंदुस्तान के जो इस्माइली हैं, इनको जो इमाम ने चांसेस दिए हैं, इन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर बैठ के जो खेल रमत कर रहा है, वो उन दूसरे इस्माइलियों के नसीब में नहीं। कनाडा के अंदर जो इस्माइली गए तो वो भी जम्मू द्वीप के इस्माइली हैं। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में आज 25,000 इस्माइली हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर 40,000 इस्माइली हैं। आज भी अफ्रीका के अंदर आखिर 20,000 इस्माइली हैं। ये सब हिंदुस्तान के जम्मू द्वीप के इस्माइली हैं कि जिनके लिए पीरों ने इबादत की, जिनके लिए पीरों ने आजिज़ियां की, विनतियां की, दुआएं मांगी, मौला के हुजूर ने आज करके प्रॉमिस लिया कि मैं आऊंगा। और वो जो खेल गमत होने वाला है वो जम्मू द्वीप में होगा, कि जिसके अंदर ये फरमाया है तोरण बांधा जाता है, यानी तैयारियां हो रही है। जुबलियां जो है ना, ये तोरण है। एक इनाम में ढूंढ के लाया इस वजह से आपको कहने के लिए कि जुबली का जो इंग्लिश वर्ड है वो संस्कृत में के हिंदुस्तान में नहीं है। जुबली जो इंग्लिश वर्ड है वो जुबिलेशन से है। जुबिलेशन कहते हैं खुशी मनाना। इंग्लिश का जो वर्ड है जुबिलेशन, उसमें से ये जुबली निकला। खुशी करो, एक खास पर्टिकुलर मौका के ऊपर स्पेशल खुशी जो की जाती उसको जुबली कहते हैं। और जुबली ये इसलिए मनाई गई, 25 बरस हो गए चांदी की जुबली, 50 बरस हो गए सोने की जुबली, 60 बरस हो गए हीरों की जुबली। ये तोरण है। इमाम को वो जो खेल गमत करना है जिसको अभी 100 बरस बाकी है, 100 बरस बाकी है। निकाह को 100 बरस बाकी है। निकाह तो जब होगा, दुल्हन आएगी, दूल्हा आएगा, जान आएगी, पंडित आएंगे, मौलवी आएंगे, उसके पहले तो तैयारियां होती हैं। कपड़े लत्ते इकट्ठे होते हैं, घर लगने इकट्ठे होते हैं, हलवाई बुलाए जाते हैं, खाने पीने का सामान इकट्ठा किया जाता है, बाजे बजाए जाते हैं, 1-2 महीने पहले से फूल हार लगाए जाते हैं, बत्तियां जलाई जाती हैं, तोरण बांधा जाता है। ये जुबलियां जो है ये उस चीज का तोरण है दीवारों कि जो गणित कानंदा के साथ लड़ाई करेगा, विश्व कुमारी के साथ शादी करेगा, सारी दुनिया को अपने कब्जे में करके सारी दुनिया का राजा बनेगा। वो चीजें जो हमारे गिनानों के अंदर लिखी हुई है वो झूठ नहीं है। हम नहीं देख सकेंगे, हमारी औलाद देखेगी। हम जो कुछ कह रहे हैं, हम जो कुछ बोल रहे हैं, ये 50 बरस 100 बरस के बाद हमारी औलाद को पता लगेगा कि आज से 50 बरस पहले 100 बरस पहले ये वाकयात बने थे। किसी में आपको वाकयात सुना रहा हूँ। आज से 100 बरस पहले झिरक के अंदर 70 आदमियों ने मौला के नाम से शहादत पाई। आज से फलाने टाइम के ऊपर ये हुआ, 1842 में असनाली शाह मामा पाया। 100 बरस के बाद ये सब बातें होंगी, हमारी औलाद को ये चीजें दिखाई जाएंगी। मुझे एक बहुत बड़ी दिलगिरी से कहना पड़ता है और दारुल-सलाम की जमात और दारुल-सलाम के अमलदारों के ऊपर मुझे शर्म आती है। उसमें मैं साथ हूँ आपके। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की दामन जुबली का उधर ये जो तख्त पड़ा है, वो जो स्टेज पड़ा है, उसका हाल देखो। किसी के दिल में कुछ नहीं होगा। ये सब बड़े मेरे पास बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा। प्रिंस अली खान देखने के लिए हाजिर इमाम की कोरोनेशन के टाइम के ऊपर
तो उस वक्त उन्होंने भी कहा था हमारे वडीलों को कि इस स्टेट को बहुत संभाल के रखो, इससे हिस्टोरिकल पीस मोस्ट वैल्यूएबल। 1943 के अंदर स्पेशल सागवान टीक वुड बर्मा से मंगवा के वो बनाया गया। उस जमाने के अंदर इसके ऊपर लाख रुपया खर्च हुआ था। आज 10 लाख रुपया खर्च करोगे तो वो पीस नहीं बन सकता। ये तो अभी थोड़ा ठीक है, कुपा के जमा खाने के नीचे उसके साइड में रख दिया। पहले तो ये बॉय स्काउट्स वगैरह उसके ऊपर बैंड रखते थे, खाना होता था तो लोग प्लेटें लेके ऊपर चढ़ के वो खाया करते थे, उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाते थे बच्चे। 100 वर्ष के बाद हमारी औलाद में से लोग निकल के इसको देखने के लिए आएंगे। अरे आगा सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने के अंदर सोने और हीरो के अंदर जो जुबलियां हुई थी उनके निशान किधर, उस वक्त ढूंढे जाएंगे। मालूम नहीं कब तक उसके पीछे होंगे, लकड़ियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी। हिस्ट्री जो है ना वो जमाने के साथ चलती है, लेकिन जमाना बड़ा बेदर्द है, जमाना किसी के साथ नहीं देता। अगर ध्यान न रखा जाए तो जमाना चीजों को खा जाता है। कई चीजें ऐसी गुम हो गई। ये जमा खाने के नीचे एक दिन किताबों का मैंने 4-5 बरस पहले की हाल देखता हूँ तो हमारी जूनी पुरानी किताबों को कीड़े खा गए। हम अपनी गाड़ियों का ध्यान रखते हैं, फर्नीचर को पॉलिश करते हैं। अरे जो इमामों की हिस्ट्री, मतलब की हिस्ट्री और ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, उनको आज दुनिया ढूंढ रही है। 100 वर्ष के बाद ये चीजें हमारी औलाद को याद आएंगी कि जब वो जमाना बहुत नजदीक होगा, खुशी से उनके दिल बिलियों उछलेंगे, जोश में आएंगे। वो अपनी नजर से थोड़े टाइम के अंदर वो जमाना देखेंगे कि जिनका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ, और 500, 600, 700, 800, 900 बरस पहले हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर जो जिक्र किया है वो चीजें बनाई जाएंगी। जिंदारो, ये जो तोरण बांधा है, ये जुबलियां तोरण है, ये जुबलियां डेकोरेशन है, ये जुबलियां शादी के इंतजाम को जाहिर करने की चीजें हैं, ताकि दुनिया को हम बताएं, दुनिया का ध्यान खींचें कि एक ऐसी व्यक्ति है जो दावा करती है कि मैं अली नबी का डायरेक्ट दादी वारिसदार हूँ। एक ऐसी व्यक्ति है कि मुसलमानों के अंदर से एक टोला उसको अपना दीन दुनिया का मालिक मानता है। एक ऐसी व्यक्ति है कि जिसके हुक्म के ऊपर जान माल सब कुछ कुर्बान हो जाता है। आप लोगों ने कभी मार्क किया, ध्यान किया कि ये 2-3 बरस के अंदर कुछ हो गया है? His Highness the Aga Khan Shia Imami Ismailia Council, Supreme Council, Territorial Council, Provincial Council, Ismailia Association, उसमें कुछ फर्क पड़ा? His Highness प्रिंस आगा खान, ये प्रिंस का नाम आ गया है। आप लोगों में से किसी ने ध्यान खींचा इसकी तरफ? ये प्रिंस का नाम हमने शुरू कर दिया है। ये भी तोरण है, ये तैयारियां हो रही है। 150 वर्ष के बाद जो बनाव बनने वाले हैं, ये तैयारियां हैं उन चीजों की। देखो दुनिया के अंदर वो तैयारियां हो रही हैं। मेरे पास इधर कहते हैं SEDCWD, दुनिया के अंदर 4-5 जो न्यूज एजेंसियां हैं, ये उन लोगों ने सारी दुनिया के अंदर न्यूज फ्लैश की 11 जुलाई को करीम आगा खान एग्लेमो की रिपोर्ट है, और रिपोर्टर्स माँ बाप के पास जाके ये रिपोर्ट लेते हैं और इसके अंदर हाजिर इमाम उनको अपनी स्टेटमेंट देते हैं। करीम आगा खान से मौला ने फरमाया, It is the developing world which is suffering most from the debilitating effects of international recession. The projects marking my silver jubilee are conceived within the framework of this universal concern and will emphasize that it is people who are the greatest asset of the poorest countries. The emphasis of this silver jubilee year will be on programs related to health, nutrition, education, and rural development, primarily in Asia and Africa, he said.
One of the major projects will be the building of a 721-bed hospital in Karachi, Pakistan, which will form part of a new international Aga Khan University. The $350 million Aga Khan University, due for completion in 1984, will be associated with Harvard University in the United States and McGill and McMaster Universities in Canada, as well as the College of Physicians and Surgeons in Pakistan, the AIDS, the stage. ये फ्लैश सारी दुनिया के ऊपर गई, ये न्यूज दुनिया को बताने के लिए इमाम को सिल्वर जुबली की कोई परवाह नहीं। लेकिन जमातों ने जब इमाम के पास अर्ज रखी, जमातों के दिलों के अंदर इमाम ने ये चीज डाली, क्योंकि ये इंतजाम, ये नक्शा पहले से डेस्टिनी बनाई जा चुकी है। इमाम को दुनिया के अंदर रोजमर्रा खेल करने हैं कि जो 100 वर्ष के बाद होने वाले हैं, उनकी ये तैयारियां हैं। सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि अली नबी की गादी का वारिसदार है। सारी दुनिया को पता लग जाना चाहिए कि नूर खुदा का दुनिया में मौजूद है। वो दावा करता है मैं डायरेक्ट नस्ल से हूँ, 49 इमाम हूँ इस्माइलियों का, जो 15 से 25 मिलियन दुनिया में रहते हैं। ये पता क्या है? ये शंख चक्कर है, ये सूर फूंकना है। कयामत से पहले रसूल पाक की हदीस में है कि इसराफील जो फरिश्ते का नाम है, वो सूर फूंकेगा। सूर कहते हैं बिगुल को। जब राजा रजवाड़ों की सवारी आती है या राजा रजवाड़ा निकल के अपने दरबार करने से आते हैं, तो उसके पहले बिगुल बनाते, तबल बजाते हैं, अनाउंस करते हैं, ताकि पता लगे लोगों को कि राजा आ रहा है, सवारी आ रही है। ये बिगुल है, ये सूर फूंका जाएगा सारी दुनिया के रेडियो के अंदर, सारी दुनिया के अंदर, प्रेस के अंदर। ये चीजें पब्लिसाइज हुई। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने में पब्लिसिटी बहुत मिली। अब हमको इतनी ज्यादा पब्लिसिटी के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खुद लोग ही इमाम के पीछे भाग रहे हैं। सुल्तान मोहम्मद शाह ने जब अपनी लाइफ शुरू की यूरोप के अंदर, तो पहले उसको वो मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आज तो दुनिया इस धुरे के ऊपर आ चुकी है। आज दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी व्यक्ति खांसी करती है या छींक आती है या सर्दी हो जाती है, तो फौरन सारी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हो जाती है कि भाई क्वीन के बेडरूम के अंदर एक इंट्रूडर चला गया। कोई दुनिया का प्रेस बाकी नहीं रहा। दुनिया आज ऐसी है। तो इमाम ज़मान को दुनिया के कानों तक ये बात पहुंचा देनी है, इसकी ये हुज्जत पूरी हो जाए ताकि कोई व्यक्ति बाकी न रहे। वो मसाई के जो जंगलों के अंदर अपनी गायों को लेके वो उनकी देखरेख करते हैं और खिलाते हैं, ध्यान रखते हैं, उसके हाथ में घड़ियाल है, दूसरे हाथ में रेडियो है, वो भी सुनता है। कभी स्वाहिली के अंदर या उसकी भाषा के अंदर कोई अनाउंसमेंट वगैरह होती है तो वो भी न्यूज सुनता है। आज जंगलों में रहने वाले लोग भी आगा खान को जानते हैं। ये तोरण है, हमारी जुबलियां जो है वो तोरण माना गया है। वो शादी की तैयारियों के बाजे गाजे हैं, फूल हैं, बत्तियां हैं, डेकोरेशन है। जैसे आज हमने हाजिर इमाम की इमामत डे मनाने के लिए किस तरह से किया, खुशियां की। बीच के अंदर ये मुबारक महीना रमजान का होने की वजह से खाना पीना हमारे 24 और 25 तारीख को होगा, नहीं तो 11 तारीख को 12 तारीख को साथ होता। तो इमाम के इस आने वाले वाकयात के लिए 30 तरफ ने 500-600 बरस के फरमान फरमाया, हमको बताया कि देखो इस तरह से इमाम खेल रचेगा। गोल्डन जुबलियां जब दो मनाई गई, मोमिनों मिशनरी पीर तब्दीली को सारा हिंदुस्तान घूमना पड़ा। 5.5 महीने मुसाफरी की, 3.5 लाख रुपया जमा करने के लिए। हिंदुस्तान की 2-2.5 लाख इस्माइली की बस्ती में 3.5 लाख रुपया मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से हुआ। इधर 5 लाख शिलिंग की बात थी। हिंदुस्तान की गरीब जमात के सामने अफ्रीका की जो छोटी जमात थी, संख्या में आश्रे 35 से 40 हजार की जमात में 5 लाख शिलिंग एक बरस के बाद इजीली हो गए। हिंदुस्तान के सामने सरखामनी में इधर 5 लाख इजी हो गए।
क्योंकि वो जमाने के एक्सचेंज के हिसाब से 1.5 शिलिंग का 1 रुपया था, लगभग इतनी ही रकम थी। मगर 10 बरस के अंदर अंदर गोल्डन जुबली खत्म हुई। उसके बाद जब डायमंड जुबली आई तो 10 बरस के अंदर अंदर हिंदुस्तान के इस्माइलियों ने 1 करोड़ रुपया जमा किया। अफ्रीका के 50,000 इस्माइलियों ने 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया, 1 करोड़ शिलिंग जमा किया। 10 बरस के अंदर हालत बदल गई। वो जमाने के अंदर जब हमने सोने के अंदर इमाम को तोला तो दुनिया के अंदर लोग उंगलियां मुंह में डालते थे, हैरान होते थे कि मिस्र देखो तो सही, इस्माइलियों ने अपने गुरु को, और वो गुरु भी गांधी की तरह कोई सुख लकड़ी नहीं था, 70 पाउंड वजन नहीं था इमाम का। उस वक्त भी वो 250 पाउंड थे, सोने में तोला। डायमंड जुबली आई तो भी हमने हीरे से तोल के दुनिया को छक बना दिया। सोने में तो तोला, हैरान हो गए, लेकिन डायमंड जुबली के अंदर जब ये तोला तो दुनिया छक हो गई। वो एक ऐसा जबरदस्त निशान था दुनिया के अंदर, एक ऐसी बात बन गई कि लाखों बरस के इंसान के हिस्ट्री के अंदर कभी नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि अशोक, सम्राट अशोक था हिंदुस्तान का, कहते हैं कि वो जब छोटा था पैदा हुआ तो उसके बाप ने उसको सोने में तोल के गरीबों फकीरों को बांट दिया। कितना होएगा? 8 पाउंड का होएगा, बहुत अच्छा हुआ तो 8 पाउंड का। बच्चे का वजन कितना होगा? बहुत मोटा होएगा तो 10 पाउंड का होएगा। चलो राजा ने 10 पाउंड का भी सोना कर दिया तो क्या होगा, लेकिन 246 रत्तल के इमाम को सोने और हीरो में तोलना कोई इजी चीज नहीं थी। मनुष्य इतिहास में ये चीज कभी नहीं बनी जो इस्माइलियों ने करके दिखाई। अभी ठहरो, इंशाअल्लाह हमारी जो औलाद होगी, हमारी जो सेकंड जनरेशन और उसके बाद की जो थर्ड जनरेशन होगी, उनके जमाने में जो बनाव बनेंगे, हम नहीं होंगे मगर उनके जमाने में जो बनाव बनेंगे वो है। पहले नामदार इस्माइलिया काउंसिल दार एस सलाम के अंदर जमात खाने में अनाउंस करवाती थी कि डायमंड जुबली के रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हैं, 10-10 शिलिंग में बेचते थे। अभी मुझे पता नहीं कि नामदार काउंसिल की ऑफिस में कुछ है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन है आपके घरों में? उस वक्त जो कुछ भी चौपानी या मैगजीन वगैरह निकले थे, है आपके घरों में? आपको उन चीजों की परवाह नहीं। ये चीजें आपकी औलाद को भविष्य में काम आएंगी। वो फिल्में कहाँ सड़ रही हैं मालूम नहीं, वो रिकॉर्ड किधर टूट गए हैं पता नहीं, वो मैगजीन कीड़े खा गए, जीवात खा गए, उदी खा गए, कुछ पता नहीं। हमें अपनी हिस्ट्री को बचाने का कोई ख्याल तक न आया। आज इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि की ये सिल्वर जुबली के मौका के ऊपर भी रिकॉर्ड निकल रहे हैं, मैगजीन निकल रहे हैं, स्पेशल नंबर निकल रहे हैं, रेडियो के अंदर न्यूज आ रही हैं। आपको कभी ये ख्याल आया कि इन चीजों को इकट्ठा करके हम अपने बाल बच्चों को सुपुर्द करके मर जाएं? किस किस के पास मेडल्स हैं? दार एस सलाम ऑक्शन मार्ट, एक दफा मैं वहां गया तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की गोल्डन जुबली के मेडल ऑक्शन में पड़े थे। मेरा कलेजा जल उठा। या तो कोई चोरी करके उधर भेजा या किसी आदमी ने उधर रख दिए, जो कुछ भी हो सका दे दिला के मैं ले आया। हमारी ये हालत। कई लोगों के पास वो पुराने मेडल्स पड़े हुए हैं, आपने कभी उन चीजों को निकाल के देखा? मौलाना हजरत इमाम शाह करीम जब 2-3 बरस के पहले 79 में लंदन में जब आए तो लंदन के अंदर अपनी इस्माइलिया एसोसिएशन ने मौला के हुजूर में हाथमी टाइम का कुछ कॉइन इकट्ठे किए थे, वो मौला को पेश किए मखमल की डब्बी के अंदर, केसेस में बॉक्स में सजा के जब मौला को दिए, मौला बहुत खुश हुए। 1000 बरस 900 बरस पहले के वो कॉइन्स आज कितनी उसकी वैल्यू है। हमारे पास वो मेडल जो इमाम की तरफ से हमें मिले हुए हैं, किसी को सर्विस का मेडल मिला है, किसी को टाइटल के हिसाब का मेडल मिला है। अरे इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह एक दिन गए किसी मेहमानी के अंदर,
जब मैं फरमान लिखता था, बाजू में बैठा था, मौला का कुछ जरूरत पड़ी तो मेरे से पेंसिल मांगी, मौला ने पेंसिल ले ली और पेंसिल लेके मेरे से अपने खीसे में डाल के चला गया। अभी मेरी हिम्मत ना पड़ी कि मैं मौला को बोलूं मेरी पेंसिल तो दे दे। ले गया। लेकिन दूसरे दिन मुझको बुला के वो पेंसिल मुझे वापस की। तो वो पेंसिल अब मेरी नहीं रही, वो पेंसिल उसकी दी हुई ऑर्डिनरी लकड़ी की पेंसिल है। आप कभी आना, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे घर से अभी भी पड़ी हुई है। इमाम की छोटी छोटी चीजें, मामूली चीजें जो है वो हमको मामूली नहीं समझनी चाहिए। दुनियावी दृष्टि में मटीरियल हिसाब से भले वो छोटी सी चीजें हैं, लेकिन वो इमाम और इस्माइली हिस्ट्री के साथ संबंध रखने के कारण से बहुत कीमती हैं। मौलाना इमाम सुल्तान अहमद शाह की दफन क्रिया के बाद माता सलामत को जो लोग मिलने के लिए जाते थे, किसी को माता सलामत कफन का कपड़ा देती थी टुकड़ा काट के, या किसी को इमाम सुल्तान अहमद शाह की कुछ चीज देती थी। मैं जब गया तो माता मुझे कहती है तू ठहर, जब सब लोग चले जाएंगे फिर मैं तेरे को एक चीज दूंगी। मैं बैठा रहा बहुत देर तक। अभी सब चले गए तो अंदर जाके इमाम सुल्तान अहमद शाह की एक शर्ट लेके आई। उसको कहती है देख, मैंने ये शर्ट किसी को नहीं दी, तेरे को देती हूँ। मैंने देखो आंखों को लगाई, आज भी वो शर्ट मेरे पास पड़ी है, कफन का टुकड़ा पड़ा है। ये हिस्टोरिकल चीजें हैं। कश्मीर के अंदर कुछ 12-13 साल पहले जबरदस्त जंग हुई हिंदू मुसलमान की। वहां कश्मीर में कहते हैं कि रसूल करीम का एक बाल मुबारक उधर पड़ा हुआ है। वो बाल एक दिन गुम हो गया, बॉक्स में है, कुछ लोग चुरा के ले गए। उसके ऊपर तो कितनी मारामारी हुई, आखिर कोई एक आदमी ले गया था, नॉन मुसलमान था, तो वो लेके उसको रेस्टोर किया, मगर उसके पीछे सैकड़ों आदमी जख्मी हो गए, 2-4 तो मारे गए। मालूम नहीं कि वो रसूल अकरम का बाल सचमुच हिस्टोरिकली फैक्ट है या नहीं, लेकिन हमारे पास तो ऐसी बहुत सी हिस्टोरिकल चीजें मौजूद पड़ी हुई हैं इमामों के टाइम की। अगर आपके घर में ऐसी कोई चीजें हैं, जिंदारों उनको संभाल के रखो, उनको जरूर संभाल के रखो, ये चीजें हमें एक दिन काम आएंगी। जुबलियां एक पर्टिकुलर खास टाइम को खुशी करने के लिए, मनाने के लिए, अपने मन की खुशियां उभर आने, उसको जाहिर करने के लिए, दिखाने के लिए, खुशियां उजवने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए एक जुबली का मौका आ गया। 25 बरस हुए हजरत इमाम की इमामत को, देखते देखते 25 बरस निकल गए। बच्चे जो पैदा नहीं हुए थे आज वो जवान हैं, जो छोटे थे वो उधेड़ हो गए, जो जवान थे बूढ़े हो गए। मौला करेगा आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो हजरत इमाम की गोल्डन जुबली भी देखेंगे, इंशाल्लाह देखोगे। ये जो जुबलियां हैं, मैंने आपको कहा ये इमामत के लिए डिक्लेरेशन का काम देती है। हमारे ऊपर सिर्फ ढोल बाजा बजा के लाइट बत्ती करके के 2 जमन खा के हम बैठ रहे तो क्या जुबली पूरी हो गई? हमारा फर्ज क्या है? अगर इमाम को चांदी में तुलना नहीं, उसने कहा कि वो मेरे दादा का टाइम था, वो जुदा टाइम था। हम क्या करें? मौलाना हजरत इमाम ने, इस हमारे मालिक ने, हमारे राहबर ने, हमारे पेशवा ने, हमारे रूहानी बाप ने, या हमारी रूहानी माँ कहो, हमारा दीन में, दुनिया में, आखिरत में और इस जीवन में सब कुछ जो कुछ भी है वो ये एक धनी है। उसने हमारे ऊपर रहम करके तालीफा भेजा। 3 दफा पढ़ा गया, 3 दफा सुप्रीम काउंसिल के ऊपर आया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर आया और हमारी नेशनल काउंसिल के ऊपर आया। सारी दुनिया के अंदर यही तारीखा गया है। मैंने लैलतुल कद्र को उपाला जमा खाने के अंदर आधा घंटा इस तालीके के ऊपर मैंने वाज की थी। ये सारा तालीका आपने सुना। इसके अंदर खास जो मार्क करने जैसी चीजें हैं, फिर नीचे तो मौला के जो गुलाम सेवक हैं उनके लिए दुआ शीश है, ऊपर थोड़ा जिक्र किया है, लेकिन इसका जो सारे तालीके का जो एसेंस है वो मैं आपके सामने वापस पढ़ता हूँ। पांगा में तो पढ़ा था। इमाम फरमाते हैं, फिर भी however the unadulterated pursuit of material well-being must never be allowed to become the exclusive objective of life. मौला फरमाया,
तुम्हारे जीवन का ध्येय यही बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि दुनिया के अंदर खाओ पियो ऐश आराम करो और उस खाने पीने ऐश आराम का जो तुमने रास्ता बनाया, आदत बनाई हुई है, उसमें कोई भी तरह का तुम फेरफार नहीं करना चाहते। अनएडल्टरेटेड परसूट, किसी के परसूट कहते हैं कोई चीज के पीछे पड़ जाना, और हम उसमें कोई भी फेरफार करने को तैयार नहीं होते। और किसके पीछे पड़े हैं? मटेरियल वेलबींग, मोटर बंगला, खाना पीना, ऐश आराम, घूमना, ये मटेरियल वेलबींग, यही कभी तुमने अपने जीवन का ध्येय बनाया तो बाबा फरमाया ये ठीक नहीं। इस अगर तुमने ऐसा किया, इट एंजेंडर्स, ये पैदा करता है an evil vacuum of destructive forces। कभी तुमने ऐसा किया तो याद रखो, बर्बाद करने वाली शक्तियां एक ऐसा एटमॉस्फेयर वैक्यूम पैदा कर देगी कि जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यानी इन चीजों से बचने के लिए इमाम ने अपनी सिल्वर जुबली के मौका के ऊपर हमको दरवानी फरमाई। आने वाला टाइम मैंने थोड़ा सा ब्रीफली आपको सितार बता दिया है कि भाई 100 बरस हैं बाकी, ये 100 बरस के अंदर दुनिया बहुत खराब हो जाएगी, मटेरियलिज्म बढ़ जाएगा, धर्म कम हो जाएगा। मैं बहुत दफा वादे कर चुका हूँ। इमाम भी हमको उसी तरह इशारा कर रहे हैं कि तुम अपने जीवन का ध्येय सिर्फ दुनिया का खाना पीना, दुनिया की तरक्की, दुनिया की सफलता, दुनिया की मौज मजा, दुनिया की सक्सेस, इसके पीछे ही तुम अपनी लाइफ को मत गुजारो। लेकिन कभी तुमने ऐसा किया तो माँ बाप फरमाया याद रखो, तुमको बर्बाद कर देने वाली शक्तियां पैदा हो जाएंगी और तुम्हारे आजू बाजू में ऐसा वैक्यूम पैदा कर देगी कि उसमें से तुम निकल नहीं सकोगे। आई देयरफॉर, तो मैं तुम्हारे सामने particularly urge upon my spiritual, urge upon my जमात। मौला फरमाया तो मैं अब तुम्हारे सामने मैं तुमको भलामन करता हूँ अपनी जमात को, a renewed commitment to that balance which I have so often pressed upon you as between the spiritual and the material facets of this life on earth। मैं तुम्हारे पास अर्ज करना कहते हैं, आजिज़ी का शब्द तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात पूर्वक भलामन करता हूँ कि जिसके लिए मैं हमेशा तुमको कहता आया हूँ कि उस चीज को कि जो तुम धार्मिक, रूहानी, दीनी और नूरानी चीज है, और दुनिया की जो शैतानी और जड़वादी चीज है, इन दोनों के अंदर समतोल रखो, बैलेंस रखो। बैलेंस क्या है जिंदारो? देखो, हम इस्माइली हैं, बातूनी हैं, हम रूहानी लोग हैं, हमारा मजहब रूहानियत सिखाता है। मौला फरमाया आम दूसरे हमारे मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा मजहब पूरा हो गया, लेकिन हम इस्माइली ऐसा नहीं समझते। मामा फरमाया अगर तुम ऐसा समझते हो कि जमात खाने आए और दुआ पढ़ ली बस मेरी फर्ज पूरी हो गई, मामा फरमाया ये बराबर नहीं। तुम्हारी सारी जिंदगी, रोजिंदा जिंदगी, एवरी डे एवरी नाइट, हर वक्त, हर लहजा, हर सांस तुम्हारा खुदा की मोहब्बत और ख्याल में बहुत फरोख होना चाहिए। शाम को दुआ पढ़ो, जमात खाने आओ, घर जाके तस्बीहां निकालो, सोते वक्त मौला को याद करो, गिनान पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, फरमान पढ़ो, ये उठ के इबादत करो, जमात खाने आओ। आज के दिन को भी मौला फरमाया हलते चलते काम काज करते करते कोई ना कोई अल्लाह का नाम, या अल्लाह कहो, या रहमान कहो, या करीम कहो, सलवात पढ़ो, या मोहम्मद कहो, या अली कहो, कोई ना कोई ऐसा नाम का जाप चालू सारा दिन सारी रात करते रहो। इमाम सुल्तान फरमाते हैं कि रात को सोते वक्त अगर मेरा कोई मुरीद मुझे याद करके अगर सोता है तो उसके 5-7 घंटे जो नींद होती है वो मैं इबादत में लेता हूँ। ये हम इस्माइलियों का काम नहीं है कि दुनिया की मौज शौक में ही पड़ जाना। ये हम इस्माइलियों का काम ये नहीं है कि सिर्फ जमात खाने आ गए और दुआ पढ़ ली, समझा कि हमारा फर्ज पूरा हो गया। हमारी तो जिंदगी के अंदर सारी रूहानियत छाई होनी चाहिए।
हम खाना खाएं तो भी मौला को याद करें, कपड़े पहने तो याद करें, नहाने जाए तो याद करें, बिजनेस करते हैं तो उसकी याद के अंदर, कहीं आते जाते हैं तो उसकी याद के अंदर 24 घंटे मौला की याद में हमें बसर करनी चाहिए। मगर इसका ये मतलब नहीं, जैसे इमाम फरमाया इखवानुस सफा, इस्माइलियों में से एक ऐसा ग्रुप निकल गया जिसके अंदर फिर दूसरे भी कौम के लोग शामिल हो गए, इसलिए इस्माइली लोग इखवानुस सफा को इस्माइली नहीं कहते, क्योंकि हिस्ट्री लिखने वालों ने उनको इस्माइली कहा है। हज़रत इमाम फरमाया उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं। ये वो इखवानुस सफा थे कि जो सफेद कपड़े मलमल के बहुत बारीक पतले कपड़े पहनते थे ठंडी के जमाने के अंदर, और ठिठुरते रहते थे, कांपते रहते थे। जब गर्मी का मौसम आवे तो वो लोग गर्म कपड़े, ऊन के वुलन के कपड़े पहनते थे, पसीने से रेब रेब हो जाते थे, चक्री आ जाती थी, सारा सारा दिन खाते नहीं थे, पानी नहीं पीते थे। उनमें ऐसे भी थे कि एक एक महीने तक समाधि में इबादत में बैठे, खाना पीना कुछ नहीं, भाई बच्चे कुछ नहीं, बिजनेस रोजगार कुछ नहीं। मौलाना हज़रत इमाम फरमाया हमारा ये तरीका नहीं, हमने ये रास्ता नहीं लिया। हमको हमारे इमामों ने हमेशा मना किया कि तुम घर बार छोड़ के 24 घंटे दुनिया के बाहर निकल जाओ, न तुम अपने दुनियावी फर्ज पूरे करो, न तुम खाने पीने का ख्याल रखो, न शरीर का ख्याल रखो, और अपने बदन को तुम दुख दे के इबादत करना चाहो कि हमको मोक्ष मुक्ति मिले। ये काम तो बुद्ध मजहब वालों का, जैन मजहब वालों का, या किसी हद तलक क्रिश्चियन पादरियों का है, हमारा नहीं। हमने तो दुनिया के अंदर प्रगति करनी है, पैसा भी पैदा करना है, मोटे बंगले भी देने हैं, अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, दुनिया में ऊपर नामना भी लेनी है, और दुनिया के अंदर साइंटिस्ट भी बड़े बड़े इस्माइलियों ने पैदा किए, इंजीनियर पैदा किए, एस्ट्रोनॉमर्स पैदा किए, ट्रेवलर्स और एक्सप्लोरर्स पैदा किए, जबरदस्त लोग पैदा किए हैं इस्माइलियों ने। इसलिए पैदा किए कि पीछे रूहानी शक्ति की, इबादत की, बंदगी की। दिन के वक्त लोग दुनिया के अंदर माल और दौलत जमा करते थे, इस्माइलियों ने लड़ाइयाँ भी की, इस्माइलियों ने अपनी सल्तनतें भी बनाई, हसन बिन सबा जैसे आदमी ने, मगर रात को इबादत होती थी, दिन को दुनिया के काम होते थे। वो रूहानी शक्तियाँ थी जो दुनिया के अंदर उनको हेल्पफुल हो रही थी। एक करोड़पति इस्माइली है, उसमें कोई मगरूरी नहीं, अगर वो सच्चा इस्माइली है, कोई मगरूरी नहीं। वो जमात खाने एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह आता है, उसको यही समझता है कि ये सब माल दौलत मेरे मौला की है, मैं तो उसका गुलाम हूँ। वो मोटर में बैठता है तो मगरूर नहीं होता, तो अच्छे कपड़े पहनता तो बड़ाई नहीं करता, तो कभी अच्छा खाना खाता है तो अपने मन के अंदर ऊंचाई नहीं समझता, और कभी वो गरीब हो जाता है तो उसको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हम रूहानी लोग हैं, हम दुनियादार नहीं हैं, हम दुनिया के पीछे मरते नहीं हैं। दुनिया हासिल करते हैं ताकि हमारी जमात ताकत वाली बने, हम दुनिया कमाते हैं ताकि हम अपनी जमात को ताकत वाला बनावे, हम दुनिया के अंदर रहते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छी तरह से रह सके, अच्छी एजुकेशन ले, अच्छा खाना खावे, हेल्दी होवे, हमारी आल औलाद भी सुखी आबाद बने, हमारा भविष्य भी अच्छा बने, हमारी जमात भी ताकत वाली बने। लेकिन जिंदारो इन तमाम चीजों के पीछे जो एसेंस है वो हमारे मजहब की रूहानियत है। रूहानियत, हम सच्चे हैं, झूठ नहीं बोलते, हम दगा फरेब नहीं करते, हम प्रॉमिस करते हैं तो पूरा करते हैं, सिर काटे को भी अगर सिर देना पड़े, कितना भी नुकसान उठाना पड़े। एक सच्चा प्योर इस्माइली जो है उसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज लॉ है, वो कभी नहीं करेगा। इस्माइली दगा नहीं करेगा, इस्माइली फरेब नहीं करेगा, इस्माइली किसी का हक नहीं खाएगा, इस्माइली किसी का बुरा नहीं करेगा, चारी चुगली नहीं करेगा। और अगर ये सब बातें करने वाला अगर इस्माइली जमात खाने में आता है तो समझ ले वो इस्माइली नहीं है। इस्माइली मजहब का अभी तक उसको छांटा नहीं पड़ा है, उसकी जिंदगी शैतान की जिंदगी है, इस्माइली की जिंदगी नहीं। इस्माइली फरेबी नहीं, इस्माइली बदमाश नहीं, इस्माइली चोर नहीं, इस्माइली दगाबाज नहीं, इस्माइली खोटारे नहीं, इस्माइली किसी को धोखा नहीं देते, क्योंकि इस्माइली मदद जो है वो रूहानियत सिखाता है। हमारी सारी जिंदगी के अंदर, हमारी हर सांस के अंदर नूर पैदा है, नूर। ये मैसेज है जो हज़रत इमाम हमको देना चाहते हैं। माँ बाप फरमाते हैं, बहुत अच्छे शब्द है नीचे, आप कहते हैं build the edifice of your future wisely। तुम्हारे भविष्य का जो शेप तुम बनाना चाहते हो, किसी शेप को घड़े न बनावे, बिल्ड करे, उसको एडिफिस कहते हैं।
तुम अपने भविष्य की शेप को अकलमंदी के पत्थर के ऊपर, बुनियाद के ऊपर रखो। अकलमंदी कौन सी? हमारे मजहब की अकलमंदी। अकलमंदी उस ईमान की अकलमंदी जो हमको रूहानी हिसाब से फरमान के रूप में मिलती है, उससे ज्यादा अकल वाला कोई नहीं। और वो आदमी के जो उससे अकल लेके जीवन गुजारता है वो अकलमंद है। Build the edifice of your future wisely. Build upon prayer and brotherhood for they are timeless, and it is only the life of the soul which is eternal. तुम अपने भविष्य को दुआ बंदगी के ऊपर और एक दूसरे की मोहब्बत भाईचारे की बुनियाद के ऊपर खड़ा करो, कारण कि ये वो चीजें हैं, दोनों इबादत बंदगी और भाईचारा मोहब्बत वगैरह, ये ऐसी चीजें हैं कि वक्त इन चीजों को खा नहीं सकता। ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे रूह के ऊपर असर करेंगी, और रूह जो है वो हमेशा जीवती रहने वाली चीज है। शरीर मर जाने वाली, फना हो जाने वाली, मिट जाने वाली चीज है। ये आज इमाम हमको अपनी इमामत के 25 बरस की सिल्वर जुबली की खुशी के मौका पे भविष्य के लिए तैयारी करते हैं। अगर हमने अपने इमाम की इस गौरवनी के ऊपर ये रास्ता अख्तियार किया कि जो इमाम बता रहा है, तो दीनदारों आपकी औलाद इस रास्ते के ऊपर चलेगी कि जो रास्ता आप इमाम की फरमानबरदारी पे अख्तियार करोगे, और उनकी जो औलाद होगी वो भी इसी रास्ते के ऊपर जाएगी। 100 बरस के बाद इमाम को जो खेल रचने हैं, 100 बरस के बाद जो इमाम को शादी करनी है, 100 बरस के बाद जो उसको दुनिया के अंदर रतन जी की स्थापना करनी है, 100 बरस के बाद जो उसको दुनिया के अंदर से बदियां बुराइयां शैतानी और इविल फोर्सेस का नाश कर देना है, उसकी तैयारी आपके हाथ में है। आप अगर होशियार नहीं होगे, आप अगर नहीं जागोगे, तो आपकी औलाद भी आपके पीछे मुर्दार बनेगी। आपका अगर ईमान कमजोर होगा तो आपकी औलाद का भी ईमान कमजोर होगा। आप अगर सो जाओगे तो आपकी औलाद भी सो जाएगी। आप अगर इबादत बंदगी से बेदरकारी करोगे तो आपकी औलाद को इबादत बंदगी कौन सिखाएगा? आप अगर नस्ल खा जाओगे तो आपकी औलाद के विचार भी हराम और खराब होंगे। उसके जोखिमदार आपकी जगह मैं कह दूं, हम हैं जो मालिकतर हैं। वो बच्चे जो अभी तक पैदा नहीं हुए, उन बच्चों के लिए भी सोच लो। वो बच्चियां के जो आज छोटी हैं, वो बच्चे के जो आज छोटे हैं, 5-10 बरस में जो शादी करेंगे, 5-10-20 बरस में जो उनकी औलाद होगी, उसका ख्याल कुछ किया? आज खाओ पियो, मजे करो, टुकड़े फेंको, शराबें पियो, बदमाशियां करो, जना करो, रंडीबाजी करो, शराब के साथ और भी जितने फेंक फतूरा काम करो। जमा खाने मत आओ, वीडियो देखते रहो, सिनेमा में जाओ, और जो कुछ भी रास्ते से पैसा मिले वो करते रहो, और फिर ये चाहो कि तुमको खुदा का नूर मिले। शैतान का नूर मिलेगा, हाज़िर इमाम का नूर नहीं मिलेगा। जिंदारो उठो, जागो, अपने मन को जगाओ, अपने मन को जगाओ। मौलाना हज़रत इमाम के फरमानों को अपने सिर पे उठाओ, अपने जीवन को बदलो। आपके यार दोस्त सगे कुटुंबी कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, पूछा उनको कभी कोई लेटर आए हैं आपके पास? दुनिया के अंदर आज कितनी खराब हालत है पता है आपको? इंग्लैंड के अंदर एवरेज हर रोज एक पेढ़ी हर रोज इंग्लैंड के अंदर दिवाला फूटती है, और यही हाल अमेरिका का है। अमेरिका के अंदर 100 बरस की पुरानी पेढ़ियां टूट रही है। कनाडा के अंदर बेकारी इतनी ज्यादा है कि ये इफेक्ट हमारी जमात को भी बहुत हुआ है। हम ऐसे लोग हैं 2-2 बरस से कनाडा में बैठे हैं, बेकार है, उनको कोई काम नहीं मिला। चीजों के भाव गिर रहे हैं, प्रॉपर्टी 25% डाउन हो चुकी है, लोगों के पास खाने की तकलीफें पड़ रही हैं, लोगों के पास माल पड़े हैं, लेने वाला कोई नहीं। इमाम ने हमको मैसेज भेजा नौरोज के टाइम के ऊपर। वो मैसेज मैं अर्ज करता हूँ मुखी कमरिया साहिबान को, 5 जमात के मुखी कमरिया यहाँ बैठे हैं, नामदार काउंसिल के बड़े लोग बैठे हैं, नामदार एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं। इन सब वडीलों के पास मेरी आजिज़ी पूर्वक अर्ज है कि दर महीने में कम से कम एक दफा ये तालिका मुबारक और वो जो
मौला ने दो ध्वनि दी थी नौरोज के दिन से जमात खानों के अंदर महीने में कम से कम एक दफा जरूर पढ़ाओ मेहरबानी करके, ताकि लोगों को याद रहे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे मुखी हसनलाल जी देवराज को, देखो मुखी कोई भी मिशनरी आगे वाज करने के लिए उसका कोई भी सब्जेक्ट होवे, दुआ का होवे कि हिस्ट्री का होवे, इमामत का होवे, दसमन का होवे, उसको कहो हमारा हुक्म है कि तुम अपनी वाइज के अंदर 10 मिनट इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, कर कसर के ऊपर, पैसे को ध्यान से खर्च करो, इसके ऊपर फजूल खर्ची ना करो, इसके ऊपर जरूर बोले। मुखी हसनलाल जी देवराज को वाला कहते हैं मुखी खोजा लोग बहुत ज़ईफ है, अमा 100 दफा बोलोगे 1 दफा सुनेंगे। इसके लिए मैं आज ही करता हूँ कि ये 2 तारीखें महीने में 1 दफा जरूर बचाओ, जमात को कोई ना कोई तो याद करेगा। वक्त खराब है, बहुत खराब है। हज़रत इमाम ने ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये रोचक की खबर, इसके लिए फरमाया कि जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनको सबसे ज्यादा इस बात की तकलीफ होगी। हम पुअरेस्ट कंट्रीज में, सारी दुनिया में जो 20-22 सबसे नीचे गरीब से गरीब देश है, उसमें एक हमारा ये तंजानिया है। हम ऐसी कंडीशन में रहते हैं, हम लोग बहुत शौक में पड़े हैं, इसके लिए हमारी आंखें वो चीज नहीं देखती कि जो हमें देखनी चाहिए। हमारे अफ्रीकन भाइयों के अंदर बहुत गरीबी है, एशियनों के अंदर भी मुख्य हिसाब बहुत गरीबी है, हालत बिगड़ती जाती है। और आने वाले 3 बरस तो खास तौर पे, वैसे 10 बरस के लिए माँ बाप ने फरमाया, लेकिन दीनदारों इनमें नेक्स्ट 3 इयर्स तो दुनिया के लिए बहुत खराब है। पैसा बचाओ, मौज शौक से हट जाओ, इबादत करो, बंदगी करो, छोड़ दो मौज शौक। रीत कर का थोड़ा ऐश आराम करना है, थोड़ा रीत कर का जिसमें निर्दोष हालत हो, जिसमें कोई गुनाह नहीं, वो करो। अठवाडिये में 1 आध सिनेमा देखो, कोई बात नहीं, लेकिन जमात खाना छोड़ के नहीं, दुआ छोड़ के नहीं। खाना पीना खाना, कभी पिकनिक के ऊपर जाओ, कोई हरकत नहीं, लेकिन हर सैटरडे को बाद आदमियों ने बना रखा है सारी रात जागना और टुकड़े सेक के खाना। मुझे टुकड़े के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मैं भी खाता हूँ, लेकिन दीनदारों मेरा कहने का मतलब टुकड़े नहीं, मेरा कहने का मतलब जिस तरीके के साथ वो ये चीज करते हैं वो तरीका हमारे धर्म के विरुद्ध है। मैं छुपी रीत से कह रहा हूँ, ओपनली नहीं कह रहा, समझने वाले समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन चीजों को फैल फतूर को भी त्याग दो, त्याग दो, मजहब की तरफ बुलंद करो, अपने आने वाली औलाद के खातिर, उसकी भलाई की खातिर मजहब में चुस्त बनो। सुबह शाम जमात खाने की हाजिरी लो, सारा दिन मौला को याद करो, नेक अमाल करो, अपनी बदियों को, अपने गुनाहों को, अपनी भूलों को, अपनी मिस्टेक को दुरुस्त करो, ठीक करो, और इमाम ज़मान को राजी करो रूहानी हिसाब से। एक इस्माइली बच्चा इमाम ज़मान को अपना मालिक समझ के किसी न किसी तरीके की खिदमत और सेवा, ब्रदरहुड का नाम जो साहब ने दिया उसमें यही है। 3-4 दिन हुए, जो कि 2-3 अठवाडिया पहले हॉस्पिटल वाले उन्होंने जमात खानों के अंदर अनाउंसमेंट कराई। अभी 3-4 दिन से अंदर एसोसिएशन अनाउंसमेंट करा रही है। अल्लाह मेरे आओ न तो थोड़ा सा काम काज करने के लिए, ऑनरेरी या पगार के ऊपर काम करने के लिए। आज एसोसिएशन को, हॉस्पिटल को, एजुकेशन को, किसी और हमारी संस्था को आज भी करनी पड़े इतनी बहुत के रोज 4, 5, 8, 10 दफा जमात खाने में अनाउंस कराना पड़े क्या तुमको आओ हमारे पास, और तुमको हम आज भी कहते हैं कि तुम मौला के घर की खिदमत करो, खुशी के साथ जाओ, टाइम मिले तो जाओ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, और कभी बिल्कुल फुर्सत है कुछ नहीं तो जाओ ना एसोसिएशन के अंदर, चेयरमैन को मिलो, लोगों को मिलो। एसोसिएशन है, अपने हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, इधर इन लोगों को आज जरूरत है। हमारी जमात घटती जाती है तो इन चीजों की जरूरत बढ़ती जाती है। आप ये चाहते हैं कि एसोसिएशन के अंदर कोई दलीप सिंह आके काम करेगा, क्योंकि भगवान दास आएगा उधर काम करने के लिए? हमको जाना चाहिए, हमको जाना चाहिए। इमाम ज़मान की खिदमत करो, सिर्फ वॉलंटियर के कपड़े पहन के जमात खाने के अंदर इधर उधर भागना दौड़ना यही काफी नहीं है। यह खिदमत है, सुखी आबाद रहो, इमाम की खिदमत करते हो, लेकिन सिर्फ यही काफी नहीं है। बहुत सी किस्म की खिदमतें हैं। अगर आज हमारी कोई एक संस्था इस बात के लिए डिमांड करती है कि हमें 2-4 वर्कर की जरूरत है, तो उधर 20 जने जाने चाहिए। हसन बिन सबा ने
रात को एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग ये बुलाई कि ये जो बादशाह है ईरान का सल्जूक, इसने हमारे ऊपर 6 लाख आदमी का लश्कर लेके हमला करने की नीयत से नजदीक आ गया है, जुल्म करना शुरू किया है। 6 लाख आदमी का लश्कर सुल्तान संजर लेके आया, हमारे पास 6 लाख आदमी नहीं थे। अलमुद के किले के अंदर लड़ने वाले कितने थे? 30,000 उमर लाइक जो लड़ सकते हैं। मैं 30,000 आदमी का लश्कर 6 लाख के सामने रख दूं तो ये तो मूर्खाई है। हसन बिन सबा अपने जनरल्स को इकट्ठा करके रात को, आधी रात को जमात खाने के अंदर बुला के इबादत करके उनको लेक्चर दे रहा है। मैं ये चाहता हूं, पान का एक बीड़ा बनाया। हिंदुस्तान की तरह वो लोग पान नहीं खाते थे, लेकिन एक खास दरख्त का पत्ता लेके इसको इसी तरह से समोसे की शक्ल में लपेट के ऐसा रख देते थे। इसको बीड़ा कहते हैं, जैसे पान का बीड़ा होता है। ये बीड़ा उसने टेबल पर रख दिया। तुम्हारे में कौन है कि जिसको अपनी जान देनी है ईमान की खातिर? एक आदमी की जान की जरूरत है। 20 आदमी खड़े हो गए। हसन बिन सबा का दिल इतना बड़ा लगा, एक आदमी की जरूरत है जान देने के लिए, 20 जने खड़े हो गए। कहता है या सैयद, सैयद कहते हैं शेख को, मालिक को, ऑफिसर को, मुझको ये चांस मिले। कहता है अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी चिट्ठी डालो। तो चिट्ठी डाली गई। जिसके नसीब में वो नाम आया वो इतना खुश था, इतना खुश था, इतना खुश था कि किसी वांडे को कोई खूबसूरत छोकरी की शादी का पैगाम देवे कैसा खुश हो गए, या किसी कंगाल को करोड़ शिलिंग की लॉटरी लग जाए तो कैसा खुश है। बहुत खुश हुआ। क्या करना था? करना ये था कि हसन बिन सबा की एक चिट्ठी ले जाके सुल्तान संजर के तंबू में, जहाँ सुल्तान सोया है, उसके सामने जमीन के ऊपर वो चिट्ठी रख के ऊपर खंजर रख देवे, डैगर रख देवे। ये काम करना था। 6 लाख के लश्कर के अंदर सुल्तान संजर का तंबू, उस तक जाके और डैगर उधर रख के आना ये कोई इजी चीज? वो आदमी गया, उसने भेष बदला, लश्कर के अंदर जाके कहने लगा मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ, कुक हूँ, खाना पकाना जानता हूँ, और मेरा खाना ऐसा है कि सुल्तान खाएगा उंगलियां चाटेगा। यूं करते 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 बड़ों तक पहुँच गया। और जब सुल्तान तक बात पहुंची, उसको खाने का शौक बहुत था। महमूद बेगड़े की तरह रात को सोता था, दोनों तरफ टेबल पड़े होते थे खाने पीने के। तो ऐसा पाता पलटा हुए एक समोसा खा ले, ऐसा पाता पलटा हुए थोड़ी सी बर्फी खा ले। महमूद बेगड़ा अहमदाबाद का बादशाह था। सुल्तान संजर को भी खाने का बहुत शौक था। तो इस आदमी ने अपने इस्माइली फिदाई ये तरीका तैयार किया। हाँ, ऐसा कोई खास बावर्ची है, जरूर लेके आओ। और सचमुच इसने ऐसा चीज पकाई, सुल्तान खुश हो गया। कुछ दिन रहा, ऐसी खिदमत की उसकी कि सुल्तान को उसके ऊपर ऐसा प्यार आ गया, खाना उसी के हाथ का खावे, वही खिला ले तो खावे। और सचमुच एक दिन मौका देख के हसन बिन सबा की चिट्ठी जमीन पे रख के ऊपर खंजर निगाड़ दिया और कुछ हो गया, बच गया। सुल्तान जब उठा तो देखा जमीन पे चिट्ठी और खंजर पड़ा है। उठा के पड़ा तो हसन बिन सबा की चिट्ठी। हसन बिन सबा ने लिखा, ऐ सुल्तान संजर, जिस मेरे आदमी ने मेरी चिट्ठी तेरे तंबू में, तेरे बेडरूम के अंदर पहुंचा के खंजर के साथ जमीन में ठोक दी है, अगर मैं उसको ये कहता कि ये खंजर जमीन में नहीं तेरे सीने में होता तो? वो कोई बहादुर आदमी नहीं था, डर गया, कांप गया। दूसरे दिन लश्कर लेके वापस चला गया। हसन बिन सबा की डिप्लोमेसी ने, लेकिन एक आदमी नहीं, सब आदमियों की एक तो मोहब्बत, बहादुरी, जवां मर्दी, हिम्मत की बात थी। दुनिया के अंदर शराबें पी के, सिगरेट पी के, जुगाड़ खेल के, मौज मजा करके, फिल्में देख के, जमात खाने की गैर हाजिरी करके हम लोग नबड़े हो गए हैं।
हम लोग कायल हो गए हैं, पागल बन गए हैं। उठो, अपनी रूहानियत को जगाओ, सच्चे पक्के इस्माइली बनो, इमाम जो चाहता है ऐसे बनो। सुबह शाम जमा खानों की हाजिरी गेमा गेम हो गए। मैं भूल गया कहना, आज इतनी बहुत हाजिरी नहीं, लेकिन कभी हमारे चेयरमैन मदद भाई ने इधर कलिया पांव रखा होता तो बाहर तक आदमी होते। हम लोगों को जहाँ दावत मिले वहीं जाना है, क्योंकि रूहानी साइड हमारी घट गई है, कमजोर हो गई है। मौला फरमाते हैं कि तुम बंदगी के ऊपर और एक दूसरे की मोहब्बत के ऊपर अपना भविष्य बनाओ, खूब बंदगी करो, अपनी औलाद को सिखाओ, सारा दिन मौला की याद में रहो, मौला के घर की खिदमत करो। कोई भी खिदमत, आधा घंटा 1 घंटा, जैसी भी किसी भी जगह। मुखी कामड़िया के पास कई आदमी जाके कभी कभी मांगनी करते हैं, मुझे साहब उनको कोई सेवा दो, ऐसे इस्माइली होने चाहिए। सामने जाके मांगनी करो, मुझे कोई सेवा दो। ये जो वॉलंटियर आते हैं, नाम लिखाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक है, शाबाश है, मौला आपको खुशियां बरकतें दे रहे। लेकिन हमारी तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके अंदर कहीं भी जरूरत पड़े हमको खड़ा हो जाना चाहिए। दुनिया भी कमाओ, दीन भी कमाओ, राज करोगे, इंशाल्लाह राज करोगे। आप, आपकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद। मौलाना हजरत इमाम का ये तखत, मौलाना हजरत इमाम का नूर दुनिया के अंदर हमेशा कायम और दायम और हमेशा रहने वाला है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे दे, दिन दुनिया के अंदर बरकतें दे दे। मौला आपको नूरानी ताकतें दे दे, मौला आपको रूहानी कुव्वतें दे दे, मौला आपके दिलों के अंदर अपना नूर भर दे दे। मौलाना हजरत इमाम आपको सच्ची मोहब्बत अता करे, एक दूसरे की मोहब्बत देवे, एक दूसरे का इखलास देवे, एक दूसरे के लिए कुर्बानी की भावना देवे। मौला के घर की खिदमत करने की तौफीक देवे, दस्तों तकलीफ में पूरा रखे। मौला आपकी हर बला दूर करे, हर मुश्किल आसान करे, हर बीमारी सबसे दूर रखे। मौला आपको हर हमेशा अपनी पनाह में छत्र छाया में रखे। दिन दुनिया के अंदर अच्छे नेक आला दर्जे के काम करने की मौला आपको तौफीक देवे। मौलाना हजरत इमाम की बात बंदगी में आपको मशहूर रखे, ज़ाहिर बात में विदाई करे।